میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے علم میں رکھنے کے لیے یہ کتاب ہے الشافی اصول کافی. اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں وسیم رضوی جیسے لوگ, اور یہ ہے بہار الانوار. یہ دونوں بھی کتابوں کی بڑی اہمیت ہے. اب ان میں کے کچھ پیجز میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہا. اس کے صرف فوٹو کاپیز کرایا. مثال کے طور پہ دیکھیے آپ, یہ دیکھیے ایسا مارکنگز ہے, انڈر لائن ہے. اس کے بڑے پیجز پہ کرا لیا فوٹو کاپیز. اصول کافی والیوم 2 پیج 123 پہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اب یہ جو بھی لوگ یہ کتاب کو مانتے ہیں, اب ہمارے علماء سے میں گزارش کروں گا کہ ان سے سوال کریں. یہ کتاب میں لکھا ہے لوگ کیا جانے جامع مانے ایک جگہ جمع ہو جانا. جامع کیا ہے؟ حضور بتائیں جامع کیا ہے. پوچھنے والا کس سے پوچھ رہا ہے؟ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا. جامع کیا ہے؟ اپنے جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہے ہیں. ایک صحیفہ ہے 70 ہاتھ لمبا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے 70,000 لمبا ہے, اور رسول اللہ نے اس کو اپنے ذہن مبارک سے بیان فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظے سے بیان کیا, اور حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھ لیا. اس میں تمام حلال اور حرام کا ذکر ہے, اور ہر اس چیز کا ذکر ہے جو لوگوں کو ہوتی ہے, یہاں ضرورت ہوتی ہے, یہاں تک کہ ہلکے سے خراش کی, ہلکا کوئی خراش آ جائے تو اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے اس کا بھی ذکر ہے, دیت کا ذکر ہے. پھر آپ نے اپنا دست مبارک ہاتھ میرے اوپر رکھا اور فرمایا اے ابو محمد مجھے اجازت ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو آپ نے کہا یہ جو میں ہاتھ رکھا تمہارے اوپر اس کا بھی ذکر اس میں لکھا ہوا ہے. پھر فرمایا تھوڑی دیر خاموش رہ کر ہمارے پاس جفر بھی ہے. جفر بھی ہے. لوگ کیا جانے جفر کیا ہے. میں نے پوچھا حضور جفر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک ظرف ہے آدم کے وقت سے جس میں اوصیاء اور انبیاء کے علم کا ذکر ہے. اوصیاء مطلب 12 اماموں کا, اور تمام نبیوں کا ہر ایک کا ذکر ہے اس کے اندر, اور ان تمام علماء کے علم کا جو بنی اسرائیل میں ہو چکے ہیں. میں نے کہا بس علم تو یہی ہے. دونوں بولے کہ ارے اب پورا علم تو یہی ہے, ہر چیز جب آ گئی تو. فرمایا صرف یہی نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصحف بک کو بولتے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بک ہے. مصحف فاطمہ بھی ہے. لوگ کیا جانے وہ کیا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے. فرمایا کیا فرما رہے سنو. فرمایا تمہارے قرآن سے, وہ مصحف 3 گنا زیادہ ہے. سمجھ میں؟ یعنی کہ اب علی رضی اللہ عنہ, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی کچھ کتابیں ملی. یہ عقیدہ ہے. اب اللہ جانے یہ کیا عقیدہ ہے, کیونکہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں مانتے اس بات کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل علیہ السلام کبھی کسی پر کوئی وحی لے کر نہیں آیا. اس کے بعد بہار انور یہ اس میں سے ہے. از سر نو تعلیم قرآن والیوم 12 پیج 403. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ شیعان علی کے ہاتھوں میں مثانی قرآن ہے, اور وہ لوگوں کو از سر نو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. از سر نو کا مطلب یعنی ابھی تک جو 3 خلفاء کے دور میں قرآن تھا وہ غلط تھا, تو پھر نئے سرے سے تعلیم دے رہے ہیں قرآن کی. یہ دیکھیے آپ, حوثی ہے نا, یمن کے حوثی, یہ لوگ سنی نہیں ہوتے. یہ لوگ میزائلز مارتے جا رہے ہیں, کعبے کو بھی ٹارگٹ بنا رہے ہیں. معلوم ہے نا, یہ بیچ میں 2 بار انٹرسپٹ کرے کعبے کو. امام قائم مطلب جو 12ویں امام آئیں گے قیامت سے پہلے. پیج نمبر 486 487 والیوم نمبر 12. آپ علیہ السلام اس خانہ کعبہ کو, آپ علیہ السلام کس کو بول رہے ہیں؟ 12ویں امام کو بول رہے ہیں. 12ویں امام اس خانہ کعبہ کو منہدم کر کے, منہدم کرنا توڑ دینا, توڑ کے انہی بنیادوں پر اس کی از سر نو تعمیر کریں گے جو بنیاد آدم علیہ السلام نے مکے کے اندر لوگوں کے لیے رکھی گئی تھی, اور جس پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دیواریں بلند کی تھیں. سمجھے آپ, آدم علیہ السلام جو فاؤنڈیشن ڈالے اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ بنائے. تو اب جو کعبہ ہے اس کو گرا کے اصل وہ جو بنیاد ہے اس کے اوپر بنائیں گے. کیوں پوچھو؟ اور ان بنیادوں پر ان دونوں کے بعد, اب ان بنیادوں پر ان دونوں کے بعد, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد, ان بنیادوں پر ان دونوں کے بعد کسی نے اس کی تعمیر ہی نہیں کی.
यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए उसमें। कब तक नहीं किया तामीर? 12वें इमाम आने तक। इस तरह वो जालिमों के बनाए हुए तमाम आसार मिटा देंगे, मक्के में भी मदीने में भी, बल्कि तमाम ममालिक में। इसी तरह वो मस्जिद कूफा को भी मुनज़्ज़िम करेंगे और उसको पहली बुनियाद पर तामीर करेंगे। पेज नंबर 502, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रजी अल्लाह तआला को अपने सीने से लगाकर कहा, ऐ हुसैन मैं तुम पर कुर्बान। नहीं समझे जुमला? सहाबा हमेशा बोलते हैं, ऐ मेरे नबी हमारे माँ बाप और हम आप पर कुर्बान। नबी किसी पे कुर्बान हो जाएंगे? कायनात नबी पर कुर्बान है। अल्लाह अकबर। पूरे सहाबा, पूरे अहले बैत हमारे नबी पर कुर्बान है। नबी कुर्बान हो जाएंगे किसी पे? नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। पेज नंबर 518, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में वापस आएंगे। अच्छा पेज नंबर 527, वही बहारुल अनवार से, रोज़े क़ियामत से पहले ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन इब्ने अलैहिस्सलाम तमाम लोगों का हिसाब किताब कर देंगे। बस क़यामत के दिन तो सिर्फ लोगों को जन्नत में भेजना या जहन्नम में पहुंचा देना बाकी रह जाएगा। और सूरह फातिहा शुरू हो रहा मालिकी यौमिद्दीन से। मैं पूरी कुरान की आयतें भरी हुई है, मैं हिसाब लूंगा। व मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर जिसने नेकी की मैं उसका हिसाब उसको दूंगा। और यहाँ हिसाब पहले ही हो जा रहा। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वो मुकाम जहां उस मर्द इमाम कायम का मस्कन होगा, यानी 12वें इमाम का जहां घर होगा, मुझे मदीने के घर से ज्यादा पसंद है। पेज 489, काबा बैतुल हराम ने सरजमीन करबला के मुकाबले में फख्र किया। काबा बोला मैं अल्लाह का घर हूं, सब तवाफ मेरा करते। काबा बैतुल हराम ने सरजमीन करबला के मुकाबले में फख्र किया तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी जानिब वही हुई, काबे को वही हुई, क्या? ऐ काबा बैतुल हराम चुप हो जा, करबला के मुकाबले में फख्र की बात ना कर। कभी ऐसा हो सकता? शबे मेराज, अल्लाह अकबर। ये तो सुनो भैया, शबे मेराज किसको हुई? रात, शब बोले तो रात, मेराज किसको हुई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को हुई? पक्का ईमान है ना? कुरान में सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 1, पहली आयत, उसको सूरह इसरा भी बोलते, इसरा रात के सफर को बोलते। पहली आयत में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के बारे में इशारतन जिक्र किया, मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक सफर करा। और फिर अहादीस में बेशुमार हमको वाक़यात मिलते हैं मेराज में पूरी चीज़ों के। यहाँ तक के अर्श के बाद का भी वाक़या कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कह दिया सिदरतुल मुंतहा पर, है मेरे नबी इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता, अब आप आगे बढ़ जाइए। बढ़ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे। ये भी ईमान है हमारा। अल्लाह के नबी के बीच में जो गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू क्या हुई ये अल्लाह जाने और नबी जाने। बराबर ईमान है नहीं है? क्या सबको मालूम हो गया क्या हो गई गुफ्तगू? नहीं हुआ ना? बीबी आयशा को मालूम हुआ, अबू बकर सिद्दीक को मालूम हुआ, उमर रजी अल्लाह ताला नहीं हुआ ना? अच्छा, रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन। शबे मेराज पर गुफ्तगू, पेज नंबर वॉल्यूम नंबर 12, पेज नंबर 578 से 580 तक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन बोल रहे हैं? वो गुफ्तगू में बात हो रही। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं कौन? अल्लाह ताला बोल रहे हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली अव्वल है तमाम इमामों में जिनसे मीसाक लिया गया, वादा लिया गया। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली वो है अलैहिस्सलाम कि जिनकी रूह तमाम इमामों में सबसे आखिरी में कब्ज होगी। का मतलब अभी अली रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा है, क्योंकि 12वें इमाम भी जिंदा है। सबसे आखिरी में उनकी जाएंगी का मतलब रूह नहीं निकली उनकी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो है जिनकी रूह तमाम इमाम में सबसे आखिर में कब्ज होगी। वो वही दाब्बा है, दाब्बा। अल्लाह अकबर। सूरह नमल में आयत नंबर 82, आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला बोले क़यामत से पहले मैं जमीन में से एक जानवर निकालूंगा और वो जानवर लोगों को बोलेगा तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं ला रहे? दाब्बतुल अर्द, अली रज़ी अल्लाह को दाब्बतुल अर्द बना दिया। वो वही दाब्बा है जो जमीन से निकलकर लोगों से कलाम करेंगे। अच्छा, अब देखिए उसके बाद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अली पर वो तमाम राज की बातें जाहिर कर दी हैं जो तुमको वही के जरिए से बताई हैं। लिहाजा मेरे और तुम्हारे दरमियान है नबी कोई ऐसा राज नहीं जो अली को मालूम ना हो। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली वो अली है कि मैंने जितनी हलाल और हराम चीजें पैदा की हैं उन सब का जानने वाला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इसमें मेरे नबी की शान बड़ी की घटी, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह अकबर।
कौन मुसलमान है भाई जो हमारे अली रजी अल्लाह तआला से मोहब्बत नहीं करता? जान है उन हम सबकी। लेकिन अगर तुम हमारे नबी का मुकाम गिराओगे, तुम अबू बकर, उमर और उस्मान रजी अल्लाह का मुकाम गिराकर उनका बढ़ाओगे, ये जुल्म है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बड़ी मजे की चीज बता रहा हूँ, ये है किताबुल इरशाद। इसमें अली रजी अल्लाह तआला ने, ये हमारी सुन्नी अकीदे वालों की नहीं है ये किताब, इसके अंदर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के तमाम शादियों का और उनकी औलादों के नाम आए। बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपकी पहली बीवी थे। आपने बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा भी शादियां की। उनकी जो दूसरी बीवी थे अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की, उनसे जो औलाद हुई उसमें बड़े बेटे का नाम उमर है। हमारी किताब का हवाला नहीं है। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान में दाखिला कर दिए गलत चीजें डाले सवालों का नाम अपने बेटे का नाम रख रहे हैं। अच्छा, बीवियां कितने भी हो, अहले बैत में अली रजी अल्लाह तआला के ये बच्चे नहीं आते। नहीं समझे? अली रजी अल्लाह तआला अहले बैत, तो बाकी के बीवी के बच्चे भी पूरे अहले बैत में छोड़े ना, उनसे छोड़े ना। नहीं, हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अहले बैत मान लिए दिल से हम। 12 इमाम आपके जो बाकी के हैं कहां से हैं? हुसैन रजी अल्लाह तआला की नस्ल से। हसन रजी अल्लाह तआला की नस्ल से क्यों नहीं है? हुसैन रजी अल्लाह तआला की कौन सी बीवी के बच्चे हैं वो पूरे? वो बीवी के हैं जो ईरान की बीवी थे। समझ में आ रही बात? मसला समझ रहे नहीं समझ रहे? हमारा सवाल है भाई, हम जानना चाह रहे हैं, जानकारी, हम हमारी नॉलेज बढ़ाना चाह रहे हैं आप लोगों के बारे में। ऐसा क्यों आऊंगा कि भाई हुसैन रजी अल्लाह तआला अरब, आपकी अरब बीवियां भी थे, हसन रजी अल्लाह तआला बड़े भाई। फिर आप लोगों का एक अकीदा कि इमाम कभी गलती नहीं कर सकते, इमाम मासूम है, इमाम से गलती हो ही नहीं सकती। तो फिर हसन रजी अल्लाह तआला ने मुआविया रजी अल्लाह तआला के हाथ पे बैत कर दिए थे, और हसन रजी अल्लाह तआला हुसैन रजी अल्लाह तआला से पहले के इमाम है। क्या होता मालूम है? जब आप बगैर कोई अल्लाह के दलाइल के बात करते तो खुद अपनी बातों में टकराते। समझ रहे? अल्लाह ताला हक को बहुत मजबूत रखे, हक को चीख चीख के बोलने की जरूरत नहीं है। 2 + 2 = 5 के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता। 2 + 2 = 4 बोल के लिख के छोड़ देती टीचर, अब जो करता कर ले, ये चाहता बोलती। नहीं समझे? ये हक है। हजारों किताबें लिख लो, कुछ भी नहीं होता, ये हक है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से तीसरी बीवी के एक बेटे का नाम उस्मान है। हमारी किताब नहीं है। समझ रहे ना? तो अब हम वसीम रज़वी को पूछेंगे, ये किताब को भी नहीं मानते क्या? ये तो हमारी नहीं है, ये औलादों को नहीं मानते। अली रज़ी अल्लाह की औलादे हैं, आपकी किताब के हवाले है। हम भी हमारे तारीख से मानते हैं ये बात को, लेकिन हम बोले तो बोलते कि तुम लोगों की बात हम नहीं मानते। ठीक है, मत मानो भैया, तो आपकी बातें हैं ना। हमको आपके ताउन की जरूरत है, हमें ना भूलिए। हम अगर हमारे ये प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों से ना मांगे तो फिर किससे मांगे? आपसे गुजारिश है कि जरूर बजरूर आप लोग IREF को ताउन कीजिए और दावत के काम को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।